हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास 5 ईवीएस चैप्टर 4 दैट इज आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो फर्स्ट एंड देन डू द क्वेश्चन आंसर। लेट गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन, हियर वी हैव एक्टिविटी 1, वॉक अराउंड योर स्कूल एंड क्रिएट इट्स मैप। आपको स्कूल के चारों तरफ घूमना है एंड यू हैव टू draw the map of your school. Include the main building. The main building आपके स्कूल में होगा, playground, garden, water tanks and other key features. आपके स्कूल में जो है आपको वो सब कुछ इंक्लूड करना है अपने मैप में. Do not forget the school gate and the pathways that connect the building. आपको स्कूल गेट को भूलना नहीं है एंड द पाथवेज दैट कनेक्ट द बिल्डिंग. डिफरेंट पाथवेज से बिल्डिंग कनेक्ट हो रहे हैं, प्लेग्राउंड कनेक्ट हो रहे हैं. You have to draw the pathways also. You could include the school gate, main building, classrooms, playground, garden, water tank, library, office, washroom, pathways. ये सब कुछ इंक्लूड कर कर आपको एक मैप ड्रॉ करना है. ठीक है. नेक्स्ट, What do I really like about my school? आपको अपने स्कूल के बारे में क्या अच्छा लगता है? You have to write. I like my teachers, friends, playground, library and the clean environment of my school. ठीक है? How can I make my school greener? आप अपने स्कूल को greener कैसे बना सकते हो? You have to plant more trees. ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं. Save water. Switch off lights and fan. Whenever you are leaving the classroom, immediately you have to switch off the lights and fan. Use dustbins, avoid plastic, keep the campus clean. This way you can make your school a greener school. ठीक है? In case there is any difficulty at school, whom do I talk to or inform? अगर स्कूल में कोई difficulty है ना, आप किसके पास जाओगे बात करने के लिए? I will inform my class teacher, principal, parents or another trusted adult. अगर स्कूल में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको अपने क्लास टीचर के पास जाना है, or you can go to your principal, or you can talk to your parents or any trusted adult. ना, आपके बड़े भैया दीदी स्कूल में पढ़ते होंगे, you can talk to them also. ठीक है. Next. Next question here we have, once you have finished making your exploration, it is time to sit together and discuss your findings. ठीक है, with the class. आपने बहुत सारे टीम बनाए थे ना, you have explored your school. You have to discuss your findings. आपने जो जो find out किया है, you have to discuss with your class. What did you find? आपने क्या ढूंढा? ठीक है. Our school is mostly clean, but some students throw wrappers on the ground. आपने देखा स्कूल तो काफी साफ है, but some students they throw wrappers here and there. ठीक है. Was there anything that made you feel concerned? क्या कुछ ऐसा था जो it is of concern? Yes, sometimes the taps leak and electricity is wasted. आपने देखा कि कुछ taps leak हो रहे हैं और somewhere the electricity is also wasted. Did anything surprise you? क्या कुछ आपको surprising भी लगा? Yes, I saw many birds and butterflies in the school garden. What made you feel proud? किस चीज के लिए आपको proud feel हुआ? Our school is green, clean and students help keep it beautiful. ना, हमारा स्कूल साफ है, green है and the students help to keep it beautiful. ठीक है. Here we have, can you name the color of the bin used for the following? Dry waste. Dry waste के लिए हम किस कलर का डस्टबिन यूज करते हैं? It is blue color. For wet waste, ना, गीले कचड़े के लिए किस कलर का डस्टबिन यूज करते हैं? It is green color. ठीक है. Next,
What are the various recyclers in your area called? ना बहुत सारे recyclers हमारे एरिया में होते हैं जिन्हें हम कबाड़ी वाला भी कहते हैं. सो आप क्या कहते हो ना, वो घर आकर हमसे सारे पेड ओल्ड न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स कलेक्ट करते हैं, राइट? दे आर कॉल्ड रिसाइकलर्स. सो आप उन्हें क्या कहते हो? So sometimes we call them as a कबाड़ी वाला, और स्क्रैप डीलर भी बोलते हैं, पेपर रिसाइकलर भी बोलते हैं, प्लास्टिक रिसाइकलर, बॉटल कलेक्टर, ना इन सभी नामों से हम जानते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डज योर स्कूल गिव टू रिसाइकलर? सो आपके स्कूल में भी काफ़ी वेस्ट जनरेट होता है. सो वो कौन से आइटम्स हैं जो आपके स्कूल रिसाइकलर्स को देते हैं? सो इट इज ओल्ड न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, राइट, प्लास्टिक बॉटल्स, ब्रोकन फर्नीचर्स, ओल्ड नोटबुक्स. ये सारे आइटम्स हम रिसाइकलर्स को देते हैं स्कूल में. ठीक है. नेक्स्ट, विच आइटम्स डू योर पेरेंट्स गिव टू रिसाइकलर? सो आपके घर में आपके पेरेंट्स रिसाइकलर को कौन से आइटम्स देते हैं? सो इट इज द न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बॉटल्स, ओल्ड बुक्स, मेटल केन्स, ग्लास बॉटल्स, ना ये सारे आइटम्स हम रिसाइकलर्स को देते हैं. फाइंड आउट. सो अनदर क्वेश्चन. With the help of your teacher, ask a recycler to visit your class. So आप अपनी टीचर की हेल्प से आप एक रिसाइकलर को अपने क्लास में बुला सकते हो एंड शेयर व्हाट दे डू एट वर्क. ठीक है. वो क्या करते हैं, व्हाट इज देयर वर्क. It will be interesting to find out where these items go and how they can be reused or recycled. So आप एक recycler को क्लास में बुला सकते हो. They will tell you how they work. वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, एंड जो भी आप पुराने आइटम्स जो उनको देते हो वो कैसे रिसाइकिल होता है. ठीक है. सो recyclers collect waste material and send them to recycling factories. So ये recycler क्या करते हैं, हमसे तो ये सारे items collect करते हैं and ये सारे items को collect करने के बाद वो recycling factories में भेज देते हैं. ठीक है. Where they are made into new useful product. वो नई चीजों में बना दिए जाते हैं. ठीक है. Next, segregation game. ठीक है. Make a small paper chit, 30 or a 40 with the names or the drawing of different items shown below. So यहाँ पे कुछ items दिए गए हैं. You can see plastic bottle, newspaper, banana peel, and bag, a wrapper, a spoon, some leftover food, ना some broken pen. So आपको क्या करना है, 30-40 ऐसा चिट बनाना है and you have to write the name or you can draw also. ठीक है. And add more items to the list based on what you see around your school or a home. आप और भी आइटम ऐड कर सकते हो जो भी आप अपने स्कूल में या घर में देखते हो. Take 3 empty boxes and label them. So आपको 3 empty boxes लेने हैं और उसमें लेवल क्या करना है, ग्रीन फॉर वेट वेस्ट, ना ग्रीन डस्टबिन में हम क्या डालते हैं, गीला कचरा, ब्लू फॉर अ ड्राई वेस्ट, एंड थर्ड कैन बी लेवल्ड एज आइटम फॉर रिसाइकलर. ठीक है. सो फर्स्ट the box will be for the wet waste, it will be green color. Second box will be a blue color dustbin for the dry waste and the third will be the items for recycler. कौन से items हम recycle कर सकते हैं? One by one pick a chit and put it in the box. So one by one आप क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो पिक करेंगे चिट एंड they have to decide in which box it should go. ठीक है. After all the chits have been put in the boxes, take one box at a time and discuss whether it has been put correctly. So हमने अगर सारा चिट डाल दिया, देन आपको क्या करना है, एक एक बॉक्स को उठाना है और उसमें से जो भी चिट है उसको खोलकर देखना है वेदर इट हैज बीन पुट इन द करेक्ट डस्टबिन और नॉट. वो करेक्ट बॉक्स में डाला गया है कि नहीं. इफ इट इज इनकरेक्ट यू हैव टू डिस्कस व्हाई. ठीक है. So like this you can do, it is a fun game.
सो लाइक अ वेट वेस्ट. सो ये किस डस्टबिन में जाएगा? इट विल बी इन अ ग्रीन डस्टबिन. सो द वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है, टी लीव्स, फ्लावर्स, सो ये सब कहाँ जाएंगे? इट विल गो टू द ग्रीन डस्टबिन, गीला कचरा. इन द ड्राई वेस्ट क्या जाएगा? प्लास्टिक रैपर्स, पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास, मेटल केन्स, ठीक है. And the items for recycler, it will be newspaper, books, bottles, iron items, aluminum cans. ये सारे items कहाँ जाएंगे? For the in the recycler box. ठीक है. Now, how is wet waste managed? So, in your school and in your home. So, अब देखो स्कूल में भी कुछ गीला कचरा जनरेट होता है, घर पे भी गीला कचरा जनरेट होता है. So, how it is managed in your school and at home? So, in school, wet waste is collected separately and can be used to make compost. So, school में जो गीला कचरा होता है, they are collected and they are we make compost out of it. ना? उससे हम क्या बनाते हैं? Compost बनाते हैं. ठीक है? In home, wet waste is collected separately and can be composted or given to municipal workers. So, घर में भी जो गीला कचरा होता है ना, उससे भी हम कंपोस्ट बना सकते हैं. और यू कैन गिव इट टू द म्युनिसिपल वर्कर्स. ठीक है, जो कचरा कलेक्ट करने के लिए आते हैं, आप उनको भी दे सकते हो या फिर आप कंपोस्ट भी बना सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ वी डू नॉट सेपरेट आवर वेस्ट? सो आप देखो, अगर वेस्ट को हम सेपरेट नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा? सो if you will not separate the waste, then pollution increases. Pollution increase होगा. Recycling becomes difficult. ना, recycling बहुत difficult होगा. Bad smell spread, ना, क्योंकि हम सूखा कचरा और गीला कचरा अलग नहीं कर रहे हैं. Because from the wet waste क्या करते हैं? They make compost. ठीक है. And from the dry waste it is recycled. So if you don't separate, वो this will create a lot of pollution. ठीक है. Disease will spread. ठीक है. So we should separate our waste. हाउ कैन वी हेल्प सैनिटेशन वर्कर्स? हम सैनिटेशन वर्कर्स का कैसे हेल्प कर सकते हैं? सो सेपरेट वेस्ट, वेस्ट को सेपरेट करके रखें. यूज डस्टबिन्स, ना, यू शुड नॉट लिटर, डू नॉट लिटर, ना, इधर उधर कचरे को नहीं फेंकना है. यूज डस्टबिन. रेस्पेक्ट सैनिटेशन वर्कर, हमें सैनिटेशन वर्कर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर ट्राइंग टू कीप द नेबरहुड क्लीन, हमारे सोसाइटी को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं. एक्टिविटी 3, टेक 2 टाइल्स और स्टोन्स. आप 2 टाइल्स, 2 टाइल्स ले लो या फिर स्टोन्स ले लो. पेंट वन ब्लैक एंड द अदर वाइट. आपको एक को वाइट पेंट करना है एंड द अदर ब्लैक. कीप देम अंडर द सन. After a while, touch each of them and feel the difference in their temperature. So आपको कुछ देर के लिए दोनों को सन में रख देना है, धूप में, and after some time you have to touch and feel the difference. आपको टच करके डिफरेंस फील करना है. Now which one feel cooler? कौन सा ठंडक महसूस होगा आपको? So you will find that the white tile will feel cooler because it reflect the sunlight. So जो white tile है ना, जिसमें हमने white पेंट किया था, वो ज़्यादा ठंडक होगा. Why? Because it reflects the sunlight. वो sunlight को reflect कर देता है. Next question here we have. If you have to paint the roof of your school or a home white, what could happen? अगर आप अपने स्कूल या घर के छत को white से पेंट कर दोगे तो क्या होगा? So, the house will become cooler because white reflects heat. So, अगर हम छत को white से पेंट कर देंगे तो क्या होगा? ये काफ़ी ठंडा हो जाएगा, हमारा घर अंदर से काफ़ी ठंडक होगा. बिकॉज द वाइट कलर दे रिफ्लेक्ट द लाइट, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है.
Next, is your area is if your area is getting warmer, what actions can be taken to keep it cool? So अगर आपका एरिया गर्म हो रहा है, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं ना, दिन पर दिन गर्मी बढ़ते जा रही है, सो व्हाट एक्शन कैन बी टेकन टू कीप इट कूल? क्या एक्शन हम ले सकते हैं ताकि हम अपने सराउंडिंग को ठंडा रख सकें? सो हम क्या कर सकते हैं? वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज ना, जितना हो सके हमें ट्रीज प्लांट करना होगा। पेंट रूफ वाइट ना, छत को वाइट कलर से पेंट करना होगा। मेक गार्डन्स, गार्डन्स बनाने होंगे। रिड्यूस पॉल्यूशन, जिस भी तरह से हमें पॉल्यूशन कम करना होगा। सेव इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दिस वे वी कैन कीप आवर सराउंडिंग कूल। ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटी 4, look out for a dripping tap or poke a small hole in a used water bottle filled with water. So अगर आपको एक ड्रिपिंग टैप मिलता है देन इट्स ओके, अगर नहीं मिलता है तो आप एक पानी का बॉटल ले लो एंड जस्ट मेक अ स्मॉल होल। ठीक है, पानी का बॉटल है, इट इज फिल्ड विद द वाटर एंड जस्ट मेक अ स्मॉल होल। ठीक है, नाउ लेट द वाटर ड्रिप, आप उसको छोड़ दो, लेट इट ड्रिप वन बाय वन, ड्रॉप बाय ड्रॉप द वाटर इज कमिंग आउट। Collect the dripping water in a glass and carefully measure the time it took for the glass to fill up. आप एक ग्लास ले लो और उसके नीचे लगा दो एंड जस्ट ऑब्जर्व कि कितना टाइम लेता है इस ग्लास को फिल करने में। सो सपोज टाइम टेकन टू फिल वन ग्लास इज 30 मिनट्स। आप देखो, एक ग्लास को फिल करने में उसे 30 मिनट्स लग रहा है। हाउ मेनी ग्लासेस वुड बिकम फुल इन वन डे? सो एक दिन में कितने ग्लास वो पानी ड्रिप करके निकलेगा? सो इट इज अराउंड 48 ग्लास। ठीक है, 48 ग्लास। देखो कि अगर इफ देर इज अ लीकिंग टैप, उससे एक एक बूंद पानी गिर रहा है, तो आप पूरे दिन में देखो कि कितना पानी वेस्ट हुआ। इट इज 48 ग्लासेस विच इज वेरी हाई। ठीक है, so you will be surprised at how quickly water adds up and how much is wasted without anyone noticing. So आप देखो कि एक बूंद हम नोटिस नहीं करते हैं, बट इफ इट इज कलेक्टेड यू कैन सी हाउ मच वाटर इज वेस्टेड। ठीक है। नेक्स्ट, what are some easy things we can do in our school to prevent wastage of water? So हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम wastage of water को reduce कर सकें स्कूल में? सो क्लोज टैप्स प्रॉपरली, जब भी आप स्कूल में टैप्स यूज कर रहे हो प्रॉपरली क्लोज इट। रिपेयर लीकिंग टैप्स, अगर कोई लीकिंग टैप्स है इमीडिएटली यू शुड रिपेयर इट। यूज वाटर केयरफुली। ठीक है, रीयूज वाटर फॉर प्लांट्स। सो अब देखो जो स्कूल में हैंड वॉश के लिए हम जितना पानी यूज कर रहे हैं दैट वाटर कैन बी अगेन, उसको थोड़ा सा प्यूरिफाई कर कर हम प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, हाउ कैन रेन वाटर बी कलेक्टेड? रेन वाटर को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? सो so the rain water from the rooftop can be collected using the pipes na. So by rain water harvesting, so rain water harvesting की मेथड से हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी छत का जो पानी होता है ना, उसको पाइप के थ्रू हम एक स्टोरेज टैंक में कलेक्ट कर सकते हैं। So by rainwater harvesting using rooftop pipes connected to storage tanks, ठीक है, जितना भी पानी जो छत पे आ रहा है ना, that should be collected using the pipes and can be stored in a storage tanks. Next, name the trees ऑन योर कैंपस और नियर योर स्कूल। सो आपके स्कूल में कौन से पेड़ हैं या आपके स्कूल के आसपास कौन से पेड़ आपको दिखते हैं? यू हैव टू राइट द नेम, लाइक अ नीम ट्री, मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, पीपल ट्री, अशोका ट्री। ठीक है, जो भी ट्री आपके स्कूल में या घर के स्कूल के आसपास आपको दिखते हैं, यू हैव टू राइट द नेम। Which birds and insects have you seen near the plants?
और ट्रीज ऑन योर स्कूल कैंपस। सो आपके स्कूल में कुछ ट्रीज होंगे। सो उन ट्रीज पे या प्लांट्स पे आप कौन से बर्ड्स या इंसेक्ट्स को देख पाते हो? यू हैव टू राइट द नेम। फॉर एग्जाम्पल, if you can see sparrow, crow, pigeon, butterfly, honey bee, ठीक है? So whatever the insects or birds you see in the campus, you have to write that. Next, take 2 glasses of water. Measure the temperature using the thermometer under the guidance of your teacher. आपको 2 ग्लास में पानी लेना है। मेजर द टेम्परेचर, ठीक है? आप अपनी टीचर का हेल्प लेके दोनों ग्लास में जो पानी है आप थर्मोमीटर की हेल्प से उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। कीप 1 ग्लास अंडर अ ट्री। आपको एक ग्लास को पेड़ के नीचे रखना है। अदर अंडर द सन, और एक को सन के नीचे रखना है, ठीक है, ओपन में। आफ्टर 1 आवर मेजर द टेम्परेचर अगेन। 1 घंटे के बाद आपको टेम्परेचर फिर से मेजर करना है, ठीक है? एंड रिकॉर्ड योर रीडिंग्स हियर। एट द स्टार्ट दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है? 1 आवर लेटर, सो 1 घंटे बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? The water kept under the tree remained cooler than the water kept in the sun. आप देखोगे जो पानी पेड़ के नीचे रखा था वो तो ठंडा है, but the water which was kept in the sun it is warmer. वो गर्म है, ठीक है? What do these recording tell us? So ये recording क्या बता रहा है? Trees keep the surrounding cool by providing shade. So trees क्या कर रहा है? It keeps the surrounding cool, ना, आसपास के सराउंडिंग को काफी ठंडा रखता है by providing shade. Next question. With the help of your teacher, try to find out the names of the trees and plants that attract birds and butterflies. Try to create a butterfly garden in your school. So आप अपनी टीचर के हेल्प से आप ऐसे प्लांट्स या फिर ट्रीज के नाम आप लिखो विच अट्रैक्ट्स बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, जो बर्ड्स और बटरफ्लाइज को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। एंड ट्राई टू मेक अ बटरफ्लाई गार्डन इन योर स्कूल, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, नीम ट्री, मैंगो ट्री, गुलमोहर ट्री, ना, इन सब ट्रीज पे बर्ड्स बटरफ्लाइज काफी आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट 3 ट्रैफिक रूल्स। 3 ट्रैफिक रूल्स लिखने हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ, ठीक है, फुटपाथ पे आपको चलना है, नॉट ऑन द रोड। क्रॉस एट द जेब्रा क्रॉसिंग, ना, जब भी आपको रोड क्रॉस करना है तो कहाँ से करना है? ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग। ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना है। इफ इट इज अ रेड लाइट यू शुड स्टॉप, इफ इट इज अ ग्रीन लाइट यू शुड गो, ठीक है? नेक्स्ट, थिंक एंड राइट अबाउट व्हाट यू सॉ एट द स्कूल गेट। सो आप जब स्कूल जाते हो तो आप देखो स्कूल गेट पे कैसा सिचुएशन होता है। स्टूडेंट्स क्रॉसिंग द रोड केयरफुली, पेरेंट्स वेटिंग एंड द व्हीकल्स मूविंग स्लोली। सो स्कूल गेट के पास क्या होता है? स्टूडेंट्स रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, पेरेंट्स आर वेटिंग, ना, वेट कर रहे होते हैं। द व्हीकल्स, जो व्हीकल्स मूव कर रहे होते हैं काफी धीरे होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, मेक योर ट्रैफिक साइन बोर्ड हियर। आप एक ट्रैफिक साइन बोर्ड बना सकते हो। यू कैन राइट स्लो डाउन, स्कूल अहेड, ना, इस टाइप का कुछ आप एक साइन बोर्ड बना सकते हो। नेक्स्ट, बिसाइड्स मेकिंग साइन बोर्ड्स, what else can we do to improve the traffic near the school? हम साइन बोर्ड तो बना सकते हैं, बट साइन बोर्ड के अलावा और आप क्या कर सकते हो जिससे आप ट्रैफिक को इम्प्रूव कर सको स्कूल के सामने, ना? सो आप क्या कर सकते हो? साइन बोर्ड तो आप लगा दिए, बट apart from the signboard what else you can do so that the traffic near the school is better, ठीक है? स्पीड ब्रेकर लगा सकते हो, ना? सो इफ देर इज a स्पीड ब्रेकर automatically the vehicles will slow down. जेब्रा क्रॉसिंग लगा सकते हो, ट्रैफिक पुलिस को बुला सकते हो, नो पार्किंग नियर द गेट, गेट के पास कोई पार्किंग ना हो, ड्राइव स्लोली, ठीक है? ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू नियर द स्कूल गेट. नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फायर एक्सटिंग्विशर केप्ट इन योर स्कूल? सो आपके स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर है, सो कहाँ पे है? सो जनरली आप देखोगे कि फायर एक्सटिंग्विशर इज केप्ट नियर द स्टेयरकेस, ना सीढ़ियों के पास है, ऑफिस में, कॉरिडोर्स में होते हैं, ठीक है। In case of a fire, where is the assembly point in your school? So अगर स्कूल में कभी फायर आग लग जाती है तो आपका असेंबली पॉइंट कहाँ कहाँ पे आपको जाना होगा? सो इट शुड बी योर प्ले ग्राउंड, ठीक है। What should you do if there is a fire or if you smell smoke? सो अगर आपके स्कूल में कभी फायर आग लग जाती है या फिर कभी आप यू स्मेल द स्मोक ऑफ द फायर ना, सो व्हाट यू शुड डू? स्टे काम, पहले तो आपको शांत रहना है। इन्फॉर्म टीचर, टीचर को इन्फॉर्म करना है। अगर कहीं आग लगी है आपने देखा, इमिडिएटली इन्फॉर्म द टीचर। यूज द नियरेस्ट एग्जिट, कहाँ से निकलना है सबसे नज़दीक का रास्ता, आपको वो लेना है। डू नॉट यूज लिफ्ट, कभी भी आग लगी हो तो आपको लिफ्ट नहीं यूज करना है। गो टू द असेंबली पॉइंट ना, यू शुड गो टू द ओपन प्ले ग्राउंड एरिया पे आपको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट activity 6. In small groups, discuss the situations given below. Each group will discuss one situation. One student from each group will then share their ideas with the class. So, आपको कुछ situations यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, and you have to form some groups. आप 3-4 स्टूडेंट का ग्रुप बना लो, ठीक है, and there are some situation given here. सो ईच स्टूडेंट फ्रॉम द ग्रुप विल शेयर देयर आइडियाज, है ना, अपने आइडियाज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर दीज सिचुएशन? टू स्टूडेंट्स आर पुशिंग एंड skipping the line at the water tap while others are waiting. So ये एक सिचुएशन दिया गया है। सिचुएशन क्या है? दो स्टूडेंट आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दे आर पुशिंग ईच अदर, दे स्किपिंग द लाइन, ना लाइन को तोड़ के जा रहे हैं, एट द वाटर टैप, ना पानी के पास, नल के पास, दे आर पुशिंग ईच अदर, लाइन को तोड़ रहे हैं, while others are waiting, और ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं। सो व्हाट यू विल डू? सो इफ यू सी सच अ सिचुएशन अनफोल्ड बिफोर यू, व्हाट कुड यू डू? सो अगर आप ऐसा सिचुएशन देखते हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट यू विल डू। आस्क द स्टूडेंट पोलाइटली टू स्टैंड इन अ लाइन। आप पोलाइटली आप स्टूडेंट्स जो झगड़ा कर रहे हैं उन्हें क्या बोलोगे? प्लीज स्टैंड इन अ लाइन। हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? सो इसे बचाया कैसे जाए? ये तो इंसिडेंट हो गया, ठीक है, बट ऐसा इंसिडेंट और आगे ना हो तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? टीच एवरीवन टू वेट फॉर देयर टर्न। हम पहले से ही क्लास में ये चीज को बताएंगे दैट यू हैव टू वेट, ठीक है, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, अपनी टर्न आने का वेट करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन, अ स्टूडेंट इज स्क्रिबलिंग ऑन अ क्लासरूम बेंच विथ अ मार्कर, another child watches but she says nothing. So एक क्लास में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? मार्कर से बेंच पे कुछ स्क्रिबल कर रहा है। सो अनदर चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड ये चीज देख रहा है बट वो कुछ नहीं बोलता है, दो ही इज डूइंग रॉन्ग बट वो कुछ बोलता नहीं है। सो आप क्या कर सकते हो? टेल द स्टूडेंट नॉट टू स्पॉइल स्कूल प्रॉपर्टी एंड इन्फॉर्म द टीचर। सो आपको क्या कहना है? आपको स्टूडेंट को भी समझाना है कि ये स्कूल की प्रॉपर्टी, आप इसे बर्बाद मत करो, खराब मत करो, एंड इन्फॉर्म द टीचर, ठीक है। Next situation, someone throws a wrapper in the playground. A younger student copies the same act. So एक स्टूडेंट ने एक रैपर को प्लेग्राउंड में फेंक दिया और उसको देखकर एक छोटा बच्चा भी सेम चीज को वो कॉपी कर लिया, उसने भी एक रैपर को प्लेग्राउंड में फेंक दिया। सो आपको क्या करना है? पिक अप द रैपर एंड थ्रो इट into the dustbin. Okay, and politely ask the student not to do this काइंड ऑफ अ बिहेवियर इन द स्कूल। आपको उसे बताना है कि ये कचड़े को आपको इधर उधर नहीं फेंकना है, यू शुड थ्रो इट इन द डस्टबिन।
One student keeps teasing and making fun of another student. So एक स्टूडेंट दूसरे को टीज कर रहा है, उसका मजाक बना रहा है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, स्टॉप टीजिंग एंड सपोर्ट द स्टूडेंट। उसे बताना है कि यू शुड स्टॉप टीजिंग एंड यू हैव टू सपोर्ट द अदर स्टूडेंट। Situation 5. A group of students are making noise in a public park and disturbing a small group doing yoga nearby. एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो है पब्लिक प्लेस में, पब्लिक पार्क में काफी हल्ला मचा रहे हैं और वहाँ पे कोई एक योगा है ना, ग्रुप योगा कर रहे हैं। सो दे आर डिस्टर्बिंग दैट ग्रुप हु आर डूइंग योगा। सो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू रिड्यूस नॉइज एंड रिस्पेक्ट अदर्स। उन्हें बताना है कि यू शुड नॉट मेक नॉइज एंड रिस्पेक्ट अदर्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट, लेट अस रिफ्लेक्ट। Out of all the classroom in your school, which one do you think is the nicest and why? So आपके स्कूल में तो बहुत सारे क्लासरूम्स होंगे। सो उन सब क्लास में से आपको सबसे अच्छा कौन सा क्लास लगता है एंड व्हाई? सो आवर क्लासरूम, जो मेरा क्लासरूम है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट इज़ क्लीन, साफ है, ब्राइट एंड वेल डेकोरेटेड। ओके। Create a happiness tree. On a wall or a chart paper, draw a large tree with many branches. आपको एक बड़े से चार्ट पेपर पे एक बहुत बड़ा ट्री बनाना है which has many branches. ठीक है। Each student should add a leaf with one small action written on it that makes the school a happier place. So हर स्टूडेंट को एक लीफ बनाना है and they have to write one action. वो कौन सा एक एक्शन लेंगे that will make the school a happier place, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ग्रीटिंग समवन, ठीक है, आप सबको ग्रीट करोगे। टर्निंग ऑफ लाइट, शेयरिंग स्पेस ना, हेल्पिंग फ्रेंड, स्माइल, सेव वाटर, प्लांट ट्रीज, कीप क्लासरूम क्लीन, रिस्पेक्ट टीचर्स, शेयर थिंग्स, यूज काइंड वर्ड्स। सो आप लीव पे ये सारे कुछ लिख सकते हो सो दैट इट विल मेक योर school a happier place, ठीक है। नेक्स्ट, sharing one feelings is exciting. Write a letter to your teacher on my school my happy place. So अगर हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, राइट। सो यू हैव टू राइट अ लेटर, अपने आपको एक लेटर लिखना है अपने टीचर को। सो ऑन द टॉपिक माई स्कूल माई हैप्पी प्लेस, ठीक है, मेरा स्कूल सबसे अच्छा हैप्पी प्लेस। सो आप क्या लिख सकते हो, डियर टीचर माई स्कूल इज माई हैप्पी प्लेस, मेरा स्कूल एक हैप्पी प्लेस है। आई एंजॉय लर्निंग विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स, आवर स्कूल इज क्लीन सेफ एंड ब्यूटिफुल, I love the playground and the garden. I promise to keep my school clean, save water, plant trees, and follow all school rules. Thank you. Your lovingly, your name, you can write here your name. Okay? So this way you can write a letter to your teacher. Next, which action would you extend to your home, neighborhood, and communities to make it a happy place for all? Describe any one of them in detail. So आप ऐसा कौन सा एक्शन है जो आप स्कूल में तो करते हो, सो दैट एक्शन यू वांट टू डू इट इन योर होम, घर में भी वो करना चाहोगे, अपने नेबरहुड में भी करना चाहोगे, अपने कम्युनिटी में भी करना चाहोगे, सो दैट यू कैन मेक इट अ हैप्पी प्लेस, ठीक है। सो आई विल प्लांट मोर ट्रीज एंड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। सो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, कचड़े को डस्टबिन में डाल सकते, टू कीप माई नेबरहुड क्लीन, ठीक है। नेक्स्ट, इमेजिन अ डे इन स्कूल फ्रॉम समवंस एल्स पर्सपेक्टिव। सो आप तो स्कूल जाते हो एज अ स्टूडेंट एंड यू सी एवरीथिंग अराउंड ना, आप एज अ स्टूडेंट आप स्कूल जाते हो, बट आपको एक दिन के लिए आपको इमेजिन करना है फ्रॉम समवंस एल्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो सपोज करो यू कैन चूज एनी ऑफ दिस, आप कुछ भी ये चूज कर सकते हो।
आप एक दिन के लिए जस्ट इमेजिन करो कि यू आर अ स्टूडेंट हु नेविगेट्स स्कूल यूजिंग अ व्हील चेयर। आप इमेजिन करो कि आप एक ऐसे ऐसे स्टूडेंट हो जो कि स्कूल व्हील चेयर पे आता है ना। देयर आर some people who cannot walk, so they use wheelchair यूज करते हैं। तो आपको just imagine करना है that you are going to the school on a wheelchair, or you can imagine that a student who speaks a different mother tongue. So suppose आपके स्कूल में सभी लोग they have a mother tongue हिंदी, so there might be some student whose mother tongue is Tamil ना। so आपको just imagine करना है कि you are that student, ठीक है। और यू कैन जस्ट इमेजिन अ सैनिटेशन वर्कर एट स्कूल। आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक सैनिटेशन वर्कर हो आप स्कूल में। ओके, सो जस्ट इमेजिन दैट एंड राइट अ डायरी एंट्री फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वो स्कूल जब आते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, व्हाट दे फेल्ट, व्हाट वाज इजी और हार्ड। सो जब वो आते हैं स्कूल तो उनके लिए क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या चीज़ उनके लिए बहुत इजी होता है, कुछ चीज़ बहुत टफ होता है उनके लिए। व्हाट मेड देम स्माइल और वरी, क्या चीज़ उनको खुशी देता है और क्या चीज़ उनके लिए परेशानी क्रिएट करता है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन एनी ऑफ दिस एंड राइट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, ठीक है। सपोज just imagine that you are a sanitation worker at school. So आप क्या लिख सकते हो, today I cleaned the classroom and playground। ना मैंने आज क्लासरूम और प्लेग्राउंड को क्लीन किया। some students thanked me which made me happy। ना कुछ लोगों ने मुझे थैंक यू कहा, which made me happy। I wish everyone used dustbin properly। अगर सब लोग डस्टबिन प्रॉपरली यूज करेंगे then we don't need a sanitation worker ना, और उनका काम भी इजी हो जाएगा because it makes my work easier। so अगर सब लोग अगर डस्टबिन को प्रॉपरली यूज करेंगे तो उनका काम इजी हो जाएगा। आई फील प्राउड टू कीप द स्कूल क्लीन। उन्हें बहुत प्राउड फील होता है बिकॉज दे आर कीपिंग द स्कूल क्लीन, ठीक है। नेक्स्ट, एज अ प्रिंसिपल फॉर अ डे what three changes would you make to enhance happiness, safety and greenery in your school। so अगर आपको एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए अपने स्कूल का, so आप क्या चेंजेस करोगे so that it can be more happier place, more safety and more greenery in your school। तो इसके लिए आप क्या करोगे, प्लांट मोर ट्रीज। सो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो इट विल बी अ ग्रीनर स्कूल। रिपेयर ऑल लीकिंग टैप्स ना, सारे लीकिंग टैप्स को रिपेयर करना। इंस्टॉल मोर डस्टबिन ना, ज़्यादा से ज़्यादा डस्टबिन हम लगाएंगे सो दैट द स्टूडेंट्स विल फाइंड द डस्टबिन्स easily and throw their garbage there, ठीक है। so this way you can make your school a happy place, ठीक है। next, in groups of 4 or 5 act out the following। so आपको 4-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है and you have to act this। a student showing kindness in a difficult situation। so kind of एक एक्ट बनाना है आपको, एक्ट करना है। so a student showing kindness in a difficult situation। so कोई difficult situation में कैसे स्टूडेंट they can be a kind। अ टीम सॉल्विंग अ स्कूल वाटर वेस्टेज प्रॉब्लम ना, स्कूल में वाटर वेस्टेज जो प्रॉब्लम है उसको कैसे एक टीम कैसे सॉल्व कर रही है। अ स्टूडेंट हेल्पिंग अ साई क्लासमेट फील इंक्लूडेड ना, स्कूल में कई स्टूडेंट्स काफ़ी शाई होते हैं, बात नहीं करते। सो हाउ यू कैन हेल्प दैट अ साई classmate ना, so that they can be included in all the activities of the classroom। after each role play, ask the class, what did you see? What was inspiring? Could this happen in real life? So हर प्ले के बाद आप अपने क्लासमेट से पूछ सकते हो, आपने क्या देखा? What was inspiring? क्या आपको कौन सा चीज बहुत इंस्पायरिंग लगा जो आप भी करना चाहोगे? Could this happen in real life? क्या ये रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? So, so student should show kindness ना, solve water wastage problem and include Psi classmates in games and activities।
right? So these are the things we could do, and yes, these happens in the real life also. ठीक है? Next, write a 1 minute speech for your morning assembly on my dream school. आपको मॉर्निंग असेंबली में एक स्पीच तैयार करना है ऑन द टॉपिक माई स्कूल, माई ड्रीम स्कूल. ठीक है? मेंशन व्हाट मेक्स इट स्पेशल, हु हेल्प्स इट stay that way and what every students can do. So आपको अपने स्कूल के बारे में लिखना है, my dream school. So you have to write that who makes it special. कौन लोग हैं जो इस स्कूल को स्पेशल बनाते हैं. hmm. So and what every students can do, और क्या हर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं. ठीक है? So आप क्या लिख सकते हो? Good morning everyone. My dream school is clean, green, safe and happy. It has many trees, clean classroom, smart learning and friendly teachers. Everyone follows rules, saves water and keeps the campus clean. ठीक है? Students respect each other and help those in need. So students हर किसी का help कर रहे हैं and they respect each other. Together we can make our dream school a reality. So ये जो ड्रीम स्कूल के बारे में लिखा जा रहा है ना, हम इसे रियलिटी में भी बना सकते हैं अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो. ठीक है? नेक्स्ट, टेक अ क्विक सर्वे, आस्क 5 students and 1 teacher what is the one thing that makes them feel happy in school. सो आपको एक सर्वे लेना है. यू कैन आस्क सम स्टूडेंट्स एंड अ टीचर दीज क्वेश्चंस. ना स्टूडेंट्स से और टीचर से ये क्वेश्चंस पूछने हैं एंड यू हैव टू राइट योर आंसर हियर. ठीक है? व्हाट इज द वन थिंग दैट मेक्स देम फील हैप्पी इन स्कूल. ऐसा क्या है जो स्कूल में उन्हें हैप्पी करता है. सो फ्रेंड्स एंड टीचर्स ना, आप स्टूडेंट से अगर ये पूछोगे तो इट इज द फ्रेंड्स एंड द टीचर्स विच मेक्स देम हैप्पी. What should improve? क्या improve कर सकते हैं? We should plant more plants and sports equipment. आपके स्कूल में जो भी improvement required है आप उसके according आप लिख सकते हो. One kind thing see today. So आपने कुछ ऐसा एक kind thing आपने देखा. Helping a friend carry books. So एक फ्रेंड की आपने देखा कि दूसरे स्टूडेंट ने हेल्प किया टू कैरी द बुक्स. ठीक है? व्हाट डिड यू लर्न? आई लर्न दैट काइंडनेस, क्लीननेस एंड टीम वर्क मेक एवरीवन हैप्पी इन स्कूल. ठीक है? अगर हम काइंड होंगे, हमारा स्कूल क्लीन होगा एंड वी ऑल वर्क इन अ टीम, देन our school will be a happy place. Okay? So we have completed all the question answer of this chapter. But still, if you have a doubt, you can ask in the comment. Okay? So see you in the next class. Till then, bye. Take care and don't forget to subscribe to the channel.